Good morning, class 12. In accountancy class, today's our topic is common size statement of profit and loss. Common size statement in which we have to find out the percentage of individual figure on some common basis. किसी एक common base के ऊपर हम individual figure की percentage calculate करते हैं. Only percentage, not the increase and decrease. That statement will be known as the common size statement. And today's we have to discuss the common size statement of profit and loss. बेटा सबसे पहले the format of statement of profit and loss. In the statement of profit and loss, first head is revenue from operation. It means sale minus sale return. Then the second head is other income, right? Then the third head is total revenue. Total revenue can be calculated revenue from operation plus other income. It means first head plus second head. Right? Then after third head total revenue, let us take the fourth head, that is expenses, less expenses, and expenses includes the cost of material consumed, purchase of stock material, changes in inventory, finance cost, depreciation, amortization expenses, right? And the another expenses are employee benefit expenses, changes in inventory. Then the total of expenses. So first head revenue from operation, second head other income, third head total revenue, fourth head expenses includes finance cost, changes in inventory, stock of raw material consumed, purchase of stock of raw material consumed, employee benefit expenses, depreciation, amortization expenses. तो इन एक्सपेंसेस का फिर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे. तो नेक्स्ट साइड इज टोटल एक्सपेंसेस. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दिस इज द फिफ्थ हेड. इन फिफ्थ हेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैन बी कैलकुलेटेड total revenue minus total expenses, then deducted tax, then we have to find out the profit after tax. It means net income. Right? So let us start the question of common size statement. Here is an example number 7 in which the figure of 2017 पहले दिया हुआ है, 2016 बाद में. लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम प्रीवियस ईयर अमाउंट यानी कि 2016 की फिगर पहले लेंगे और 2017 की फिगर बाद में लेंगे. एंड द आइटम इज गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, purchase of stock in trade, changes in inventory, other expenses and other income. So let us start the common size statement of profit and loss, and the format is common size statement of profit and loss for the year ended 31st March 2016 and 2017. Particular note number, amount of 2015 and 16, amount of 2016 and 17, percentage of 2016 and percentage of 2017. बेटा इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम परसेंटेज किसके बेस में निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे. जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में हमने परसेंटेज टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड टोटल के बेस पे परसेंटेज निकाली थी. लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. सो द फर्स्ट हेडिंग इज गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन in the year 16 to 25 lakh, in the year 2017 40 lakh. तो हमें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. 25 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100%, 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100%. Then come to the next heading, that is add other income. Other income हमें प्रीवियस ईयर में गिवन है 50,000 एंड करंट ईयर में गिवन है 1,60,000 एंड द परसेंटेज इज 50,000 upon 25 lakh into 102% and 1,60,000 upon 40 lakh into 104%. After that, the third head can be calculated revenue from operation plus other income. It means first head plus second head, right? So 2 lakh, 25 lakh plus 50,000, that is 25 lakh 50,000 and 40 lakh plus 1,60,000. This is the total revenue and the percentage is 25 lakh 50,000 upon 25 lakh into 102% and 41 lakh 60,000 upon 40 lakh into 104%. After that we have taken the fourth head and fourth head is expenses.
राइट। और स्टेटमेंट में हमें एक्सपेंसेस गिवन है बेटे, चेंजेस इन इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो सबसे पहले हम लेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 18,50,000 और करंट ईयर का अमाउंट है 33,60,000। सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज आल्सो। 18,50,000 upon 25 lakh into 100, 74%, and 33,60,000 upon 40 lakh into 100, 84%। तो प्रीवियस ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे और करंट ईयर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव गिवन द नेक्स्ट एक्सपेंसेस दैट इज चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंट्री का प्रीवियस ईयर का अमाउंट है हमारा 1,50,000 और करंट ईयर का अमाउंट है -2 लाख, राइट। 1,50,000 is the positive item and current year amount of changes in inventory is -2 lakh। -2 lakh है तो इसको हम ब्रैकेट में डिनोट्स करेंगे and the percentage can be calculated 1,50,000 upon 25 lakh into 100, that is 6%। 2 lakh upon 40 lakh into 100, that is -5%। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है बेटे वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट हमारा करंट ईयर का है 1 लाख और प्रीवियस ईयर का 1 लाख और करंट ईयर का 1,20,000 एंड द परसेंटेज इज 1 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, 4%, एंड 1,20,000 अपॉन 40 लाख इंटू 100, 3%। तो बेटे हमें 3 तरह के एक्सपेंसेस गिवन है, चेंजेस इन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंसेस। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों आइटम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, 18,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 21 लाख इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड 21 lakh अपॉन 25 lakh into 100, 84%। इसी तरह से करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस फाइंड आउट करेंगे, चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस। 33,60,000, बट यहाँ पर हमें माइनस का दिया हुआ है 2 लाख, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 33,60,000 माइनस 2, 31,60,000 plus 1,20,000, 32,80,000 is the total expenses in the current year and the percentage is 32,80,000 upon 40 lakh into 100, that is 82%. Now come to the last head, that is profit before tax, and profit before tax can be calculated total revenue minus total expenses। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रेवेन्यू है बेटे 25,50,000 और टोटल एक्सपेंसेस है 21 लाख। प्रीवियस ईयर का टोटल रेवेन्यू है बेटे हमारे पास 25,50,000 और टोटल एक्सपेंसेस है 21 लाख। तो टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि 25,50,000 माइनस 21 लाख, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 4,50,000 एंड द परसेंटेज इज 4,50,000 अपॉन 25 लाख इंटू 100, 18%। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का हमारे पास टोटल रेवेन्यू है बेटे 41,60,000 और टोटल एक्सपेंसेस है 32,80,000। देन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,60,000 माइनस 32,80,000, दैट इज 8,80,000 एंड द परसेंटेज इज 8,80,000 अपॉन 40 lakh into 100, that is 22%। So this is the profit before tax। अगर इसमें हमें टैक्स रेट गिवन होता तो टैक्स भी माइनस करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट इनकम फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। सो स्टूडेंट, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम इंडिविजुअल आइटम की ओनली परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एंड द परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
प्रीवियस ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे यानी कि 25 लाख के बेस पे इंडिविजुअल आइटम की हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और करंट ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 40 लाख के बेस पे हम करंट ईयर के अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे. सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर ऑफ common size statement. Now you have to calculate all the back exercise question of this chapter, and that in the next video we started the new chapter, that is accounting ratio. Thank you.